ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی پوائنٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان شکیل زکی۔ آج ہم گفتگو کریں گے سندھ کے سینئر سیاستدان مخدوم جمیل الزماں پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیوں سے کیوں نالاں ہیں، جبکہ ایک طرف سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی تبدیلی کی بازگشت سنائی دے رہی ہیں، اور اس وزیر اعلیٰ سندھ کی دوڑ کے اندر سردار محمد بخش مہر اور شکیل انعام میمن وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں شامل ہے، جبکہ سندھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ماضی حال کیا ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے، فیس بک پیج کو فالو ضرور کیجئے۔ یہی آپ کی ہماری اخلاقی مدد ہے تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، ہم سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ سینئر صحافی، تجزیہ نگار، کالم نگار جناب رحمت اللہ بڑھو موجود ہیں۔ ہم ان سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ رحمت اللہ بڑھو صاحب، آپ سندھ اسمبلی بھی ایک عرصے سے کور کر رہے ہیں، اور اس وقت مخدوم جمیل الزماں کی جو پیپلز پارٹی سے دوریاں بڑھ رہی ہیں اور وہ وزیر اعظم سے ملاقات کے کیوں خواہش مند ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور آپ نے بالکل بھی ایک سندھ کی سیاست سے وابستہ ایک سوال کیا، تو میں عرض کرتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب سے بنی ہے ابھی تک ایک اپنا عوامی تاثر تو قائم کر چکی ہے کہ وہ عوامی پبلک پارٹی ہے، اور وہ مسلسل کنٹینیوشن میں گزشتہ 15 سال 18 سال سے اقتدار کی طرف رجوع ہے، وہ چل رہی ہے۔ تو اس سارے تسلسل میں، اقتداری تسلسل میں، پیپلز پارٹی کافی کچھ ڈیلیور بھی کر چکی ہے، اور پیپلز پارٹی کافی کچھ پولیٹیکلی گنوا بھی چکی ہے عوامی طور پہ۔ تو لازمی ہے پیپلز پارٹی ایک پارلیمانی پارٹی ہو، اور پارلیمانی پارٹی میں مختلف گروپس ہوتے ہیں، اور لازمی ہے تو پیپلز پارٹی میں ایک گروپ ہے جو مسلسل اقتدار پہ ہے، وہ مراد علی شاہ کی صورت میں ہے، وہ قائم علی شاہ کی صورت میں ہے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل اقتدار کی سندھ میں پارٹی رہی ہے، گزشتہ 2008 سے 2024 چل رہا ہے، تو کنٹینیو پیپلز پارٹی بالکل ڈومینیٹ ہے سندھ کی سیاست پہ بھی اور سندھ کے اقتدار پہ بھی۔ آپ نے دیکھا لازمی پیپلز پارٹی ایک پارلیمانی پارٹی ہے، اس میں مختلف گروپ ہوتے ہیں، تو مخدوم جمیل الزماں پہ ایک پریشر گروپ یا ایک پارلیمانی گروپ کا حصہ ہے۔ اس کے والد مخدوم امین فہیم صاحب خود پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کا سربراہ رہا ہے۔ وہ ایک وقت تھا بیچارہ، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، لیکن اس وقت اپنی جماعت کا بھی، مخدوم جمیل الزماں کی اپنی جو جماعت ہے وہ ایک گاتی ہے، اس پس منظر میں بھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیادی ممبرشپ سے لے کے ابھی تک ان کا ایک تعارف رہا ہے، تو وہ متاثر رہا ہے۔ اور سندھ میں ایسی حالات ہیں بھی، مٹیاری سے روزانہ کوئی نہ کوئی اغوا ہوتا ہے، مٹیاری میں قتل عام ہو رہا ہے۔ ایسے ساری سندھ میں آپ جیکب آباد سے لے کے کشمور تک آ جائیں، گھوٹکی سے لے کے آپ سکھر تک آ جائیں، آپ لاڑکانہ سے لے کے شکارپور تک آ جائیں، شکارپور سے لے کے آپ پھر کندکوٹ اور ٹھل کے درمیان آ جائیں، تو یہ ساری بدامنی کی ایک بڑی جو پھیلی ہے وبا، تو وہ متاثر کر رہی ہے، اور اس سے پیپلز پارٹی بھی متاثر ہوئی ہے، اور اقتداری طور پہ پیپلز پارٹی متاثر بھی ہوئی، کیونکہ اس سوالوں کو جوابات تو وہ دے گی۔ تو مخدوم جمیل الزماں کسی حد تک تو پارٹی سے اختلاف رکھ کے، پارٹی پالیسی سے اپنا موقف بیان کریں، وہ کسی حد تک حقیقت بھی ہے، لیکن لازمی ہے پیپلز پارٹی اتنی بڑی پارٹی ہے، اور اس میں کوئی اسٹینڈ لینے والا بندہ نظر نہیں آ رہا، تو مخدوم جمیل نے ایک اسٹینڈ لے کے سامنے آیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ صرف سندھ حکومت کی ناکامی بیان نہیں کر رہا، لیکن وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی سے ہی اختلاف کر رہا ہے، وہ سندھ میں اپنے اقتدار کے ہوتے ہوئے امن امان قائم نہیں کر سکی۔ تو میرا خیال کہ وہی ایک ہے کہ وہ احساس دلا کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ جناب مراد علی شاہ، جو کہ طویل عرصے سے سندھ کی وزارت عظمیٰ پر براجمان ہیں، تو ان کے خلاف بھی پیپلز پارٹی میں مختلف شخصیات جو ہیں وہ
सरगर्म है कि वो हम वजीर आला बने हैं, जिसमें सरदार मोहम्मद बख्श महर और शर्जील इनाम मेमन साहब। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, इसके लिए मैं आपसे थोड़ी सी इजाज़त और मैं वजाहत में चला जी जाऊंगा जी ना, जी कि हम 93 में चले जाते हैं कि 93 में जैसे कायम अली शाह उम्मीदवार था, बहुत ही एक मतलब पसंदीदा उम्मीदवार था वज़ीर आला का सिंध में। उसके सामने आ गया उसका भांजा परवेज अली शाह कि भाई मैं भी तो उम्मीदवार हूँ, मैं भी बड़ा करीब हूँ क़यादत के, मैं भी वज़ीर आला हूं। तो मामा और भांजे की एक लड़ाई हो गई। जब ये इतनी बड़ी लड़ाई हुई तो वो इख्तलाफ सामने आ गया पार्टी में कि भाई किसको पसंद करें। तो मुराद अली शाह साहब को, जो वालिद गिरामी था सैयद अब्दुल्ला शाह, दादू से ताल्लुक रखता था। उस वक्त जामशोरो डिस्ट्रिक्ट नहीं बना, लेकिन ये जामशोरो से लेके दादू, और दादू की सरहदें जाके लाड़कान से लगती हैं, लाड़कान से लेके कराची तक। कायम अली शाह और परवेज अली शाह 93 में वजारत आला के उम्मीदवार बने कि भाई हम, तो मामा भांजे की जो लड़ाई हुई उसके दरमियान में दादू के अब्दुल्ला शाह साहब, जो मुराद अली शाह साहब के वालिद गिरामी थे, वो सामने आ गए। लाजमी उसमें किसने लॉबिंग की, कितनी की, वो एक बड़ी तारीख है, उसका मैं भी शाहिद हूँ किसी तक। लेकिन मैं अब मुख्तसर ये करके आता हूँ। तो अब्दुल्ला शाह जब वज़ीर आला बन गए तो मामा भांजे की गेम आउट हो गई और वो वज़ीर बन गया, वज़ीर आपाशी परवेज अली शाह, और कायम अली शाह साहब साइड हो गए। तो बहरहाल अब्दुल्ला शाह साहब ने बहुत अच्छा तासुर कायम किया। इवन एमक्यूएम की लड़ाई चली, पीपल्स पार्टी की इक़्तिदार की लड़ाई चली, मारदार चली, जो भी था, अब्दुल्ला शाह ने एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर का तासुर कायम किया। जिस तरह मुराद अली शाह, उसका बेटा भी एक अच्छा तासुर दे रहा है कि अच्छा मैनेजमेंट का बंदा है, अच्छा फाइनेंस का बंदा है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन के समझने वाला बंदा है। तो बहरहाल मुराद अली शाह के वालिद गिरामी अब्दुल्ला शाह एक अच्छा तासुर चला गया। अब वो अल्लाह को प्यारा हो गया। लाजमी एक गैप है, उसके दरमियान उसकी वरसाई आएंगे, उसका बेटा आया जब इक़्तिदार पे, तो उसने क्या किया कि वही कायम अली शाह जो अब्दुल्ला शाह के मुकाबले में, या अब्दुल्ला शाह जो कायम अली शाह के मुकाबले में आया था, तो कायम अली शाह वज़ीर आला बन गया 2008 में बेनज़ीर साहबा की गैर मौजूदगी में और अब्दुल्ला शाह की गैर, वो अल्लाह को प्यारे हो गए दोनों। तो अब वही मुराद अली शाह फाइनेंस मिनिस्टर बन के बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहा था और कर रहा है अभी तक भी फाइनेंस में। तो उसने क्या किया कि आगे चल के वही कायम अली शाह के खिलाफ, जो अब्दुल्ला शाह कायम अली शाह के खिलाफ वज़ीर आला बना था, तो उसने गेम उलट कर दी। उसको सुना है कि यही मखदूम जमील जमा की फैमिली जो गादी, उसने सपोर्ट किया। ये लक्यारी के सैयद हैं, इसको पीर साहब पगारा ने भी सपोर्ट किया, बड़े ने, कि भाई इसको वज़ीर आला बनने जाना चाहिए। तो बहरहाल मुराद अली शाह जब वज़ीर आला बना तो कायम अली शाह की गेम आउट हो गई। इस तरह गुज़िश्ता 10 सालों से 9 सालों से ये इक़्तिदार पे वज़ीर आला भी है, वज़ीर फाइनेंस भी है, मुख्तलिफ वज़ारतें रख चुका है, बड़ा अच्छा एक्टिव अपनी जगह पे है। ऐसा कोई और पार्लियामेंटेरियन मेरा ख्याल है कि नहीं है पीपल्स पार्टी में एक्टिव। तो वो मुराद अली शाह अब किस सूरत में कामयाब है नाकाम है, वो उसका ही सपोर्टर, जबकि मखदूम जमील जमा उसका ही सपोर्टर, उसका ही जो वजीर रहा है, काबीना का मेंबर भी रहा है, वो इख्तलाफ करके आया कि सिंध में अमन अमान की सूरत हाल बहुत खराब है। यहाँ तक कि हाला, मटियारी, सईदाबाद में बहुत आए दिन वारदातें हो रही हैं, लोग अगवा हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसमें चंद रोज पहले बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरा वजीर आला मुराद अली शाह है, तो उसके बाद तो ये अफवाहें दम तोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन सरदार मोहम्मद बख्श महर और शर्जील इनाम मेमन अपनी वजीर आला की दौड़ में अभी भी तक लगे हुए हैं, तो इसका क्या हकीकत से क्या ताल्लुक है? देखें, इस तरह का तासुर तो बिलावल भुट्टो साहब मुराद अली शाह पे देता आया है। इससे भी थोड़ा पीछे जाएंगे, आज से 1.5 साल 2 साल पहले जब इसके खिलाफ एक लॉबिंग हो रही थी कि भाई वज़ीर आला फलां बन रहा है, फलां बन रहा है, तो बिलावल भुट्टो साहब ने भी यही सामने बात की थी, मुराद अली शाह हमारा नेक्स्ट वज़ीर आला भी है, अब नहीं लेकिन नेक्स्ट भी है। तो वो हुआ, साबित हुआ, उन्होंने उसको कायम किया। लेकिन उसके बाद भी 1 महीना भी नहीं हुआ, फिर सरगर्मियां शुरू हुई कि भाई इसको हटाया जा रहा है, इसको हटाया जा रहा है। तो लाजमी वो पार्लियामानी पार्टी है, उसमें ग्रुप हैं, एक फरल साहिबा का है, एक जरदारी साहब है, एक बिलावल भुट्टो साहब है, खुद पार्टी के अपने भी अंदर जो सरबराह हैं वो भी एक ग्रुप की शिकल रखते हैं। तो मुराद अली शाह के लिए तो अभी भी तासुर यह है कि बिलावल भुट्टो साहब का उसके शफकत का हाथ है।
लेकिन ये कब तक शफकत का हाथ होगा, कितनी देर चलेगा, ये मुस्तकबल सवाल तो है ही है। लेकिन इस चलते हुए हाल में भी मुराद अली शाह के खिलाफ इस वक्त भी पार्लियामानी पार्टी के मेंबर और सिंध असेंबली के मेंबर खुद पीपल्स पार्टी के एक्टिव हैं कि किस वक्त भी हमें मौका मिले तो हम वज़ीर आला बन जाएं। इसी तरह जिस तरह अब्दुल्ला शाह, परवेज अली शाह और कामिल शाह के दरमियान निकल आए, इस तरह ही कामिल अली शाह और पीर मज़हर हक के 2011-10 के दरमियान झगड़ा चला कि मैं वज़ीर आला, तो कोई न बन सका, लेकिन मुराद अली शाह कामयाब हुआ। मुमकिन है इस वक्त जो सूरत हाल आ रही, जरा हमें भी बता रहे हैं सरदार मोहम्मद बख्शमार, शर्जील मेमन साहब, नासिर शाह, इवन कायम अली शाह भी पुश कर रहा है, किसी ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है कि गेम होनी चाहिए। अब देखते हैं कि हालात कितना कंट्रोल करते हैं। रहमतुल्लाह भट्टो साहब, सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का माजी और हाल क्या है, इस पर हमारे नाज़रीन को बताएं। गुजारिश है कि पाकिस्तान में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक पार्लियामानी बुनियाद पे बनती है और असूलन जो राइट है वो अपोजिशन को है, हुकूमत को नहीं है। लेकिन यहाँ पे जिसकी मोनोपोली ज़्यादा होती है इक़्तिदार में और अपोजिशन अगर कमज़ोर होती है तो वो सीट हुकूमत की तरफ चली जाती है। इस तरह ही का अलमिया है। गुज़श्ता 16 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में इक़्तिदार पे बुराजमा है और इक़्तिदार पे हावी है और इक़्तिदार उनको मिल रहा है थ्रू पार्लियामेंट। तो इस वक्त चेंज हो गया है सीनारियो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। गुज़श्ता 13 साल से 12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन को तो वो राइट नहीं दे रही। अब क्या पोजीशन है अपोजिशन की और क्या पोजीशन पीपल्स पार्टी की, आपस में अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये असूली तौर पे ओहदा जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप का है वो अपोजिशन का राइट है। ठीक, लेकिन गुज़श्ता 10 साल पहले, इस पार्लियामानी साल से पहले, गुलाम कादिर चांडियो साहब इनके थे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स का, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई उम्मीदवार थे नवाबशाह से। इस तरह ही इससे पहले जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन था सलीम रजा खोड़ो साहब, और सलीम रजा जलबानी साहब थे, वो भी नवाबशाह के, ये भी गुलाम कादिर चांडियो साहब नवाबशाह के। इस वक्त जो सूरत हाल है, नई पार्लियामेंट आई है और इक़्तिदार वज़ारत आला का मुराद अली शाह साहब को मिला है, तो सीनियर सियासतदान निसार खोड़ो साहब खुद स्पीकर भी रहा है, कई बार पार्लियामेंट का मेंबर भी रहा है, इस वक्त भी है। तो ये उसके उसमें आ गई है कि वो चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, तो अब वो एक्टिव हुआ है। लेकिन आप गुज़श्ता माजी करीब में जाएं तो 10 साल पहले गैर फाल ये पार्लियामानी कमेटी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बुनियाद पे बनी है वो गैर फाल रही है। कोई भी एक इजलास सही तरह से आउटपुट न दे सका, जबकि इतने बड़े बड़े स्कैंडल आए, अरबों रुपए के, गंदम के आए, मोटरवे केस आया, मोटरवे केस की ज़मीनें जो मटियारी केस था, नौशर फिरोज डीसी का केस था, अरबों रुपयों का था, उसमें खुद मकदी जमील जमान साहब वाले के मामला मुलव्वस थे, तो वो कितना मुलव्वस है नहीं, लेकिन वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला था, उसको एक्टिव होकर क्लियर करना। तो अभी वो निसार खोड़ो साहब जैसे चेयरमैन बने तो एक्टिव हो गए कि भाई मामला जो है कंट्रोल करो, करप्शन को कंट्रोल करो, और होना भी चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ये सवाबदीद है कि एंटी करप्शन वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम या जो भी एहतसाब कुंदा इदारे हैं उनसे ये पावरफुल है। ठीक, और ये बड़े बड़े मेगा स्कैंडल जो करप्शन के छानबीन करके क्लियर करते हैं कि भाई कितनी उसमें सदाकत है या नहीं है। तो बहरहाल ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस वक्त थोड़ी मुतहरक हुई है। मुझे उम्मीद है कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध असेंबली के मुलाजिम हबीब समेजो से लेके उसकी करप्शन लेके, क्योंकि उसकी नैब में केस चल रहा है, उसका एंटी करप्शन केस चल रहा है, उसका सुप्रीम कोर्ट में केस गया है कि उसकी करप्शन का या उसके जो भी गलत कार्यों का है, वो एक चपरासी से लेके स्पेशल सेक्रेटरी बना है। उसके अलावा आज एक वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम ने एक इंक्वायरी कंडक्ट करके फैसला दिया है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साबिक डीजी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हिदायतुल्लाह शिजड़ो साहब, जो वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट था उसमें तो तकरीबन 40 करोड़ से ऊपर की करप्शन करके भाग गया। अब वो पेंशन ले चुका है,
चीफ सेक्रेटरी ने बड़ी कोशिश की है कि भाई इसको पकड़ो और इसकी पेंशन रोको। अब सूरत हाल है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सवाबदीद रखती है इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स को, स्कैंडलाइज जो होते हैं, जी हाँ। छानबीन करती है और नतीजा अखज़ करती है कि भाई कंट्रोल करो करप्शन को। मैं आपको थोड़ा छोटी सी तारीख बताऊं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बुनियादी तौर पे तो अपोजिशन लीडर को मिलना चाहिए, अगर नहीं तो पार्लियामेंट फाल होती है तो कोई भी बन सकता है, पार्लियामानी मेंबर्स की राय से इसके मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा अगर वो असेंबली गैर फाल है या असेंबली नहीं है तो उसकी बुनियाद पे सिंध में चीफ सेक्रेटरी जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फराइज देता है। गुज़िश्ता कई चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट था या कुछ और थे, छोटा मोटा उनको मौका मिला, लेकिन ए के लोधी साहब एक सिंध के नामवर ब्यूरोक्रेट थे और बहुत अच्छे जी हाँ। एफिशिएंट और काबिल थे। वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को लुक आफ्टर करते थे। वो बड़े अच्छे फैसले किए, अच्छे बड़े केसेस रोजाना के बुनियाद पे चलाता था। तो अब निसार खोड़ो इतना बड़ा एक्टिव हुआ है, हम उम्मीद करते हैं, मिलना तो अपोजिशन को चाहिए था लेकिन अपोजिशन इतनी एक्टिव नहीं, तो निसार खोड़ो में मुझे उम्मीद है कि वो अब करप्शन को बिल्कुल ख़त्म करने के एक टारगेट रखा हुआ है, उसमें रोज़ाना इजलास कर रहा है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि निसार खोड़ो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को इतना फाल करके सिंध से करप्शन का खात्मा ज़रूर लाएंगे। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।